Decisions plays important role in everybody's life. And what if we take wrong decision, and what if we take wrong path? There are so many questions and so many myths are present in parents' mind, students' mind, and for solving these kind of problems, we are here with a career counseling program which is conducted by Lucky Bal Niketan, Kamla Nehru Nagar, Jodhpur. And for solving these kind of problems, we have a special guest or special career counselor, Miss Pooja Chandani, practicing company secretary, and she is first female youngest chairperson of Jodhpur ICSI in 2019. She is also associated with so many NGOs, and she is also associated with Lucky Bal Niketan from last so many years for guiding our students. Along with ma'am, we have specialist Mr. Dhirendra Sharma, who is company secretary, who is practicing company secretary, and he is chairman of Jodhpur chapter of ICSI. Along with them, we have Dr. Seema Sharma, and she is coordinator of senior wing in Lucky Bal Niketan. So, thank you Kalpesh sir, and on behalf of Lucky Bal Niketan Kamla Nehru Nagar, I welcome you all. Thank you so much. So, as sir said कि it's really a very difficult decision कि हमें क्या opt करना है. So, as sir has introduced कि this is a career counseling program, and in career counseling program for commerce student, the very first question comes out कि हम commerce opt क्यों करें. जो पहला क्वेश्चन ये आता है सर 10th के बाद में हम देखते हैं बच्चों के दिमाग में कि भाई पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि आप साइंस लीजिए, लेकिन जो पीयर प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, कुछ कॉमर्स लेते हैं तो मैंने भी कॉमर्स ले लिया. तो ये जो एक कहते हैं ना सटीक डिसीजन होना चाहिए बच्चे के दिमाग में कि मैं अगर कॉमर्स लूँ तो क्यों लूँ. तो इसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट पूजा मैम टू जस्ट ब्रीफ आवर स्टूडेंट कि एक बच्चा जो 10th के बाद डिसीजन लेना चाहता है क्यों कॉमर्स ऑप्ट करें. First of all, I would like to thank the management team of LBN for organizing career counseling programs. It's been all more than 4 years that we've been coming. ICSI जोधपुर की तरफ से यहाँ पर आते ही रहते हैं, और इस तरीके से आपके प्रिंसिपल सर और मैनेजमेंट आर वेरी वेलकमिंग टू अस टू ऑर्गेनाइज दिस करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स. तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये कहना कि सभी बच्चों को व्हेन दे आर डूइंग 10th, इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव ऑफ देम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग करियर. राइट. एक्चुअल क्या हमें देखना है, और ये जब जितना जल्दी पड़ जाता है बच्चे के दिमाग में मैम, उतना ही ज़्यादा इजी रहता है हमारे लिए. ये इसलिए क्योंकि जैसे हम अगर बात करते हैं CS की, कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स, तो CS के अंदर क्या होता है, जो फाउंडेशन लेवल होता है या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो अभी है, तो 11th-12th फॉर्म्स द बेसिक पार्ट ऑफ इट. सो 11th-12th की पढ़ाई अगर बच्चे की अच्छी होगी, 11th-12th में उसके स्कोर्स अच्छे होंगे, तो दैट विल इवेंचुअली हेल्प अ लॉट. तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, सो दैट द स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव जो है वो 11th-12th से ही क्लियर रहे कि मुझे ये करना है आगे, और मुझे इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मुझे आगे कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत ना रहे. अब कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ मैम कि वाई स्टूडेंट शुड चूज़ कॉमर्स आफ्टर 10th. देखिए, ये तो वैसे स्टूडेंट का खुद का भी माइंड मेकअप रहता है इफ़ ही विशेस टू ऑप्ट फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. बेसिकली वी वुड सजेस्ट कि आप कॉमर्स लें. ऐसा इसलिए कि कॉमर्स के अंदर में देर आर सो मनी स्ट्रीम्स अवेलेबल. कॉमर्स के अंदर में यू कैन बी इनटू बिजनेस, यू कैन बी इनटू HR, यू कैन बी इनटू कंपनी कंप्लाइंसेस, यू कैन बी इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, you can be a KMP of a company, you can be into law, you can practice advocacy. So there are numerous n number of opportunities available to a student who opts for a commerce stream rather than a science or an artistic background person. I will not criticize any of the stream, but yes, a commerce stream provides a wider array of opportunities to a student to opt for a career. Again, now CS has come back with so many new amendments into syllabus as well, जहाँ पर हम साइंस के बच्चों को भी वेलकम करते हैं. सो इट इज़ इंडीड, अभी हमारे जो लीडरशिप है उनकी तरफ से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, जिसके अंदर एक बच्चा अगर कोई साइंस स्ट्रीम से भी आ जाता है, 12th के बाद में साइंस स्ट्रीम किया हुआ है, वो भी CS के अंदर में आके, और वो CS के कोर्स को इट्स वेरी ईजी एंड अडेप्टिव फॉर हिम कि उसको पढ़ के और पास भी करें. इज़ इट पॉसिबल मैम? बिकॉज ये तो एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल
आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात मैम होती मैं है। आपको लाइव एग्जांपल बता सकती हूँ 2019 के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं रंजीत पांडे सर, ही इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ओनली, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ग्रेट। सो मैम साइंस आपको जोधपुर में मिल जाएंगे बहुत से सीनियर कंपनी सेक्रेटरी जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, And- सीएस की, और आज सीएस में उनका वेल नोन नाम है। बहुत ग्रेट पुराने सर, दिस इज रियली, मतलब नहीं तो एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इवन हम लोग भी अगर अपनी बात करें तो वी हैव दिस इन आवर माइंड कि अगर हमें CA CS करना है तो वी हैव टू बी फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ये एक शायद मुझे लगता है सबकी काफ़ी हमारे there's a yeah. taboo into people. Okay. So now अब तो जो CSEET का हमारा एंट्रेंस एग्जाम है उसमें तो बिल्कुल लिबरल कर दिया है कि नाउ साइंस पर्सन कैन ऑल्सो Go through, गो थ्रू इट। सो अभी बड़ा ही इजी कर लिया। तो अब ये कॉमर्स वाला क्वेश्चन तो अब इतना वो सब्जेक्टिव रहता नहीं है वैसे, बट स्टिल हम ये बोलेंगे कि अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट के सब्जेक्ट्स हैं, तो यू आर मोर और लेस उसमें ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। तो इट इज़ गुड टू क्रिएट अ बेस देयर फ्रॉम, बट नेवरदलेस इफ अ पर्सन इज़ नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड तो वो उस समय भी अगर पढ़ लेंगे तो एवरीथिंग इज़ इनटू द मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट्स हैं, पेपर्स है, कोचिंग्स, हमारा इंस्टीट्यूट है, चैप्टर है, काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम है आपके साथ। The student can understand the things, no problem. सो हियर इफ वी से लाइक कि जो 2 पॉइंट होते हैं एक बच्चे के डिसीजन मेकर्स कि लाइक आफ्टर 10th द चाइल्ड इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट स्ट्रीम शुड आई ऑप्ट, एंड इफ एनी हाउ द चाइल्ड गोज इनटू साइंस स्ट्रीम बट इफ ही चेंजेस हिज माइंड और शी चेंजेस हर माइंड, then they have this opportunity then that they can go into commerce stream as well for CS. डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज हमेशा अवेलेबल ही है ये चीज़ कि आप कभी भी कोई भी, इट इज़ नॉट, एक चैप्टर आता था मुझे याद है 11th-12th के अंदर इंग्लिश में, द रोड नॉट टेकन, Yeah. तो दैट यूज टू बी द गुड ओल्ड डेज टाइम। अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो यू कैन टेक एनी Any रोड। road. अगर आपको लगता है कि मेरे को साइंस से कॉमर्स में स्विच करना है, कॉमर्स से कुछ भी स्विच करना है, तो यू कैन डू, बट हम तो यही रहेंगे, कम इन टू आवर फैमिली। सो कॉमर्स इज ऑलवेज बेटर बिकॉज आप उसमें और अडेप्टिव हो जाते हैं। Yeah. नेवरदलेस किसी और से स्ट्रीम से भी आते हैं तो भी CS के द्वारा आपके लिए बिल्कुल ओके। नॉर्मली क्या होता है कि ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो भी कॉमर्स के लिए ऑप्ट करता है तो एक बार CA के लिए ज़रूर डोर नॉक करेगा। तो क्या ये मिथ है कि हम अपना करियर सिर्फ कॉमर्स लेके CA में ही बना सकते हैं, या बच्चे के लिए और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं? ये एक ऑफन क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर अराइज होता है और उनके पेरेंट्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन अराइज होता है। आज के जो सिनेरियो, जो कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ CA की डिग्री लेके सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज के अंदर बहुत से मैटर होते हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी के, NCLT, NCLAT, IBC, IPC, तो सब में आज कंपनी सेक्रेटरी को खुद अपीयर होने की रिकॉग्निशन मिल चुकी है। वो खुद अपनी प्रैक्टिस सेटअप करके वो IBC में, NCLT में, NCLAT में आप खुद वहाँ पर जाके आप खुद अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन इनकम टैक्स अथॉरिटी में भी आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज ये नहीं रहा कि खाली CS है तो CA है तो ही आप वहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगी, नहीं। Exactly. दूसरे अभी CS में भी ये चीज़ मिल चुकी है। दूसरे कोर्सेज भी काफ़ी है अलॉन्ग विद CA, जहाँ पे इक्वलेंट उनकी डिग्री वैल्यूएबल है, लाइक CS है, CMA ऑल्सो इज़ देयर, तो सबकी इक्वलेंट वैल्यू है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि हम सिर्फ CA लेके ही करियर बना सकते हैं कॉमर्स के अंदर। CA के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कॉमर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 3 जो सुपीरियर बॉडी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये 3 जो कॉमर्स की टॉप मोस्ट डिग्रियाँ हैं, और तीनों का फील्ड अपने आप में एक सेपरेट डिवाइडेशन किया हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिया हुआ है वो जैसे कि फाइनेंस का देखेंगे, CS का दे रखा है वो लीगल देखेंगे, कॉस्टिंग का, कॉस्ट डिपार्टमेंट का तो कॉस्टिंग देखो कैसे कॉस्ट निकालनी है उसके रिगार्डिंग उस इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है। इन तीनों डिग्रियों का, तीनों का सबका सेपरेट काम है, लेकिन तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है, तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो सर की बात को मैं यहाँ पर एक एड ऑन भी करना चाहूँगी कि जिस तरीके से सर ने पूरा एक्सक्विजिटली उसको एक्सप्लेन किया। आप देखिए, अगर मैं सर आपसे पूछूँ पानी की क्या इंपॉर्टेंस है और खाने की क्या इंपॉर्टेंस है, वी कैन नॉट लिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो मतलब हमें दोनों की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी का अपनी एक अलग एक्सपर्टीज़ रहती है कंपनी लॉ के ऊपर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलग एक्सपर्टीज़ रहती है और एक कॉस्ट अकाउंटेंट की अलग है। सो सब अलग से काम नहीं कर सकते, दे ऑल हैव टू वर्क इन अ इंटीग्रेटेड कल्चर, दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। बट हाँ, ये है कि सबकी वैल्यू अपनी अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, देयर इज़ नो कंपैरिजन के ऊपर नीचे क्या है, बट एवरीथिंग। अब ये मैं बताना चाहूँगी, आपके हो सकता है ये आगे क्वेश्चंस में कवर हो। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली कि अगर कोई बच्चे को इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में ज़्यादा, सो ही शुड गो विथ CA। अगर किसी बच्चे को लॉ में
आई विल नॉट टॉक अबाउट थ्योरी, लॉ में उसको इंटरेस्ट है, कंपनी लॉ में इंटरेस्ट है, तो ही मस्ट गो फॉर CS, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव नॉलेज है लॉ का। एंड CS प्लस लॉ इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। से आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं आगे, तो वहाँ पे आपके जो कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है एडवाइजरी की, तो वहाँ पे दे वांट CS एंड LLB कॉम्बिनेशन, बहुत ज़्यादा चलता है मेट्रोज़ में, तो ये भी फुलफिल हो जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका जस्टिफाई कर there are मैम so बहुत many ways. अच्छा लगा ये, बिकॉज जनरली क्या होता है कॉमर्स ऑप्ट कर लिया, बिकॉज चलिए कोई भी रीज़न रहा था, या पेरेंट्स का प्रेशर था या खुद की विलिंगनेस थी, कॉमर्स ऑप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद के कॉम्बिनेशन जो आपने अभी बताए, जो सर ने अभी बताया, इट वाज रियली वेरी नाइस एंड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर, एज़ यू ऑल नो, कोविड-19 के कारण वी आर नॉट एबल कि हम अपने बच्चों को यहाँ इन्वाइट कर पाते, बट ड्यू टू देयर क्यूरियोसिटी, देयर इंटरेस्ट, they have also so many questions in their mind. So बच्चे यहाँ नहीं हैं, students are not here, but there are so many questions in their mind and they have shared those questions with us. And one of the student is asking this question. Myself Drishti Gehlot, and I am a student of class 12th Commerce. I have observed that there is very much hype for Chartered Accountant course in youth. So my question is, what is the scope of Chartered Accountant nationally as well as internationally? Thank you. धीरेन्द्र सर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे बच्चे को बताएं कि क्या क्या स्कोप उसका है। CA चाहे कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो कॉमर्स की, CA, CS या CMA, तीनों डिग्रियों का नेशनल इंटरनेशनली इक्वल आपको वेटेज मिलेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि CA के साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने मोर देन 12 कंट्री के साथ टाइप हो रखा है, जिसका जैसे इंडिया के अंदर कोई कंपनी सेक्रेटरी है, वो दूसरी कंट्री जहाँ पे उस इंस्टीट्यूट का टाइप हो रखा है, वहाँ पे जाकर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है वहाँ की कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किए बिना। ओके, ये आप ये मत देखिए आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल वाइज है, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA बनते हो, तो आप एक नेशनल लेवल पे आके एक ऑरा के अंदर आके आप खत्म नहीं होते हो, आपको पूरा वर्ल्ड मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसियाँ चाहे कहीं भी हो सब सेम होती है, बिल्कुल। डेबिट क्रेडिट सब जगह सेम होता है, Right, sir. तो आप सब जगह काम कर सकते हो। सो इट मीन्स कि अगर बच्चा इंडिया में रहकर भी अगर वो कर रहा है, तो ही जो एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है। राइट सर, थैंक यू सर। अपार्ट फ्रॉम CA, CA से रिलेटेड है CA, CS एंड CMA। तो आपने ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या ये कोर्सेज साथ में हो सकते हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हो जाएगी, इनकी डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या हो जाएगी, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि मैं CA के साथ CS कर लूँ या CMA के साथ CA कर लूँ, कुछ एजम्पशंस मिल जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी बच्चों की काफ़ी सारी क्वेरीज रहती है कि दोनों कोर्सेज करने पे एडवांटेजेस क्या क्या है और इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है और डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। सर, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूँगी। Yes, sir. एज अ लेमैन, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी आने वाली जनरेशन को उसके बारे में कुछ अच्छा गाइड कर पाऊँ। तो सर, एज अ लेमैन हमारे पेरेंट को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि अगर एक बच्चे ने 10th के बाद में कॉमर्स ऑप्ट किया है, तो जो सर ने कहा जैसे CA, CS, CMA, इनके बारे में एक तो डिफरेंसेस और इनकी हायरार्की जो होती है, उसके लिए हमारे पेरेंट्स को आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जस्ट लाइक अपन CA की बात करते हैं, तो उसके अंदर होता है पहला बेस होता है CPT, देन होता है IPCC, देन होता है फाइनल। राइट। वैसा का वैसे ही CS इंस्टीट्यूट में ने भी अभी अपना सिलेबस चेंज किया, उसके अंदर सबसे पहले दे दिया है CSCT, जो एक एंट्रेंस टेस्ट है CS कोर्स के लिए। देन उसके बाद में इंटरमीडिएट, देन एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, देन उसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये एक हायरार्की है तीनों कोर्सेज के, दोनों कोर्सेज के अंदर। कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप CSCT पास करेंगे, देन आपको उसके बाद में आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद में आपको एक 24 मंथ की एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी कंपनी जिसमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट है, वहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग आप चाहे तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के साथ में कर सकते हैं या आप प्रोफेशनल एग्जाम पास होने के बाद में भी कर सकते हैं। देर आफ्टर उसके बाद होगा प्रोफेशनल स्टेज। प्रोफेशनल स्टेज क्लियर होने के बाद में आपको 15 डेज की एक MSOP में मैनेजमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वो करने के बाद में आपको ICSI का मेंबरशिप मिलता है। कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ की ट्रेनिंग, MSOP एंड जो उसके बाद में आपको ICSI का मेंबरशिप मिलता है।
और एक बच्चा सीएस बन जाता है। हाँ। तो सर ये जो ट्रेनिंग होती है, तो ये ट्रेनिंग के लिए बच्चे को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है या इंस्टीट्यूट उसको प्रोवाइड करवाता है, उसके और लिए- उस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? उसके लिए इंस्टीट्यूट की जो साइट है ICSI.edu, वहाँ पर बहुत से मेंबर और बहुत सी कंपनियाँ रजिस्टर्ड है जहाँ पे, और हर बार न्यूज़ में और वहाँ पे आती रहती है हमको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पास आउट बच्चा है वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, देन आपका इंटरव्यू होता है और उसमें आप सेलेक्ट होते हो। वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता है। तो स्टाइपेंड जो आपको जो सर्विसेज दे रहे हो आप, वो कंपनीज भी देती है और प्रोफेशनल भी उसके लिए आपको पे करते हैं। उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर 24 महीने के अंदर आपको कंपनी लॉ, लेबर लॉ, इकोनॉमिक्स लॉ, व्हाटएवर जो भी लॉ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उस सबके बारे में आपको इन डिप नॉलेज दी जाती है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके उसको एनुअली मेंटेन करना, एनुअली मेंटेन करने के बाद अगर स्ट्राइक ऑफ हो गई कोई कंपनी तो वापस रिवाइवल करना, NCLT में कैसे प्रैक्टिस की जाती है, NCLAT में कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, IBC में कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसके बारे में सारी डिटेल प्रोसेस उन 24 महीनों में आपको तैयार बताया जाता है, ताकि बच्चा जब निकले तो वो एक तरीके से Final कंप्लीट complete पैकेज package बन के निकले बाहर। दैट्स रियली वेरी नाइस। सर जैसा कि हम देखते हैं कि CA CS इनकी जो रिज़ल्ट रेट है, मतलब जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद भी जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत कम परसेंट होता है जो सिलेक्शन का है, और कॉमर्स जो बच्चों ने ऑप्ट किया सर वो रेंज बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हो गए सर, उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया करियर स्टार्ट हो गया। लेकिन सर वो एक बड़ा लॉट जो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, उनके लिए सर क्या और ऑप्शंस हैं, आप लोग प्लीज़ उसके बारे में गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि हार नहीं मानना है। राइट सर। इस प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर आप फेल नहीं होते हो कभी भी, आप सिर्फ और सिर्फ आगे और पीछे होते हो। आपके साथ वाला एक अटेम्प्ट आगे पास हो गया, एक आपके साथ वाला एक अटेम्प्ट पीछे पास हुआ, जी। लेकिन आप फेल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ी है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी काम आती है बिल्कुल। जो आप कहीं से भी अर्न नहीं कर सकते Right, sir. हो। इवन आप प्रैक्टिकल जॉब में जाओगे और आपने अगर वो स्टडी की हुई है तो आपको 1 मिनट के अंदर आपको पूछते ही आपके पास जवाब उसका हाजिर होगा। इंटरव्यू में आपको भी फेल नहीं होगी इसका चीज़ का, पहली बेसिक तो यही जी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अगर इन आपका माइंड बैकअप हो गया कि नहीं मुझे तो इसको छोड़ना ही है, अब इस प्रोफेशनल कोर्सेज को नहीं करना है, तो आप दूसरे सेक्टर जैसे गवर्नमेंट UPSC है, बैंकिंग सेक्टर के जो जॉब आते हैं आफ्टर 12th से क्लरिकल के IBBC IBBI वो एग्जीक्यूट करवाती है एग्ज़ाम। दूसरे जो UPSC और RPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं क्लरिकल के, उनके एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। पूजा मैम आप ऐड ऑन करेंगे? मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो हर इस बच्चे के साथ में होता है। हाँ जी। 12th जैसे ही पास करी तो आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया हमारा, CACET है अभी, पहले हमारा अलग हुआ करता था फाउंडेशन एग्ज़ाम, तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। अब इसके साथ में आप साइमल्टेनियसली BCom भी करते हो। ये ऑन ग्राउंड की बात है कि आपकी ग्रेजुएशन भी साथ में चलती है और CS भी साथ में चलती है। अब जो क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि CA CS CM में साथ में कर सकते हैं क्या, वैसे तो एक एकेडमिक कोर्स जो BCom और ये होते हैं, क्योंकि इतना हमें रेगुलरली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है जोधपुर में रहते हुए, तो हम साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। तो इट इज़ अ मैच ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स एंड एन एकेडमिक कोर्स, तो ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। तो अब क्या हुआ था, जब मैं CS कर रही थी, मैंने फर्स्ट जो CPT अपना जो ये CACET क्लियर किया तो मेरा BCom फर्स्ट ईयर हो गया। उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव में प्रमोट हुई नेक्स्ट ईयर, उसके बाद में मेरा सेकंड ईयर हो गया, उसके बाद में मैं फाइनल में आई तो मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया, है ना। तो ये साथ में चलता रहता है और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, द कोर्स इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। जो आप BCom अकाउंटिंग ऑनर्स, मेरा अकाउंटिंग ऑनर्स था, तो आप अकाउंटिंग ऑनर्स में या BCom पास कोर्स में जो पढ़ते हैं एंड CS में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका मैच भी करता है सिलेबस, बेसिक आपके। जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है जी। वो इन तीनों प्रोफेशन को मिला के ही डिजाइन किया गया है ओके। कॉमर्स का, हाँ हाँ। ताकि जब भी आप कॉमर्स, चाहे पास कोर्स है कॉमर्स का, उसका सिलेबस ले लीजिए और इन तीनों प्रोफेशन का सिलेबस ले लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको 50 to 60% सिमिलर मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन मैडम ने पूछा कि बच्चे को निराश होने की ज़रूरत ना पड़े, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन हो गई है ना, आप ग्रेजुएट हो गए। अब यहाँ पर आते आते क्योंकि बच्चे को एग्जीक्यूटिव तक प्रॉब्लम नहीं होती, ऑनेस्टली एग्जीक्यूटिव तक मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक बच्चा हमेशा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर हम बैनर तो शो करेंगे ही, पर मैं आपको बता देती हूँ, ब्रोशर शो करेंगे। अब इसके अंदर हमारा क्या, जैसे कोर्स के अंदर में क्या होता है, जैसे ही एग्जीक्यूटिव कर लिया उसके बाद में फाइनल में प्रमोट हुआ, है ना, तो ट्रेनिंग पीरियड होता है। अब बच्चा चाहे तो ट्रेनिंग से वो अर्न भी कर लेता है,
स्टाइपेंड जो है उसको ट्रेनिंग से मिलता है, मतलब वो खुद का खर्चा खुद भी खुद निकाल बियर कर सकता है और वो नॉलेज भी गेन करता है, एक्सपीरियंस भी गेन करता है जो उसको और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर वो सेल्फ डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात है कि बच्चे को फाइनल में क्लियर नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन हो गई, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा। उसके बाद अगर उसको बच्चे को टीचिंग में इंटरेस्ट है या सर ने जैसे बताया बैंक वगैरह का, वो भी साइमल्टेनियसली वो कर सकता है। नहीं तो अगर वो इंस्टीट्यूट में रहकर ही उसने जो काम सीखा है ट्रेनिंग में, जैसे अभी सर ने बताया IBC का काम, NCLT का काम, ये तो सर ने बहुत हाई लेवल के हमारे प्रोग्राम्स बताए जो मतलब बहुत ही प्रॉफिट अर्निंग मनी मिंटिंग प्रोडक्ट्स हैं, मनी मिंटिंग प्रोडक्ट्स है। लेकिन एक्चुअली में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कंपनी का एनुअल रिटर्न बनाना, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी के अंदर कामकाज कैसे होता है, CS का क्या रोल रहता है, मिनट्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, AGM कैसे होल्ड होती है, EGM, अगर वो बच्चा ये भी समझ लेता है प्रैक्टिकली तो इससे भी वो अपनी लाइफ सिक्योर कर ही लेता है बहुत अच्छे से, इजी हैंड से। तो मोटिवेशन कभी नहीं लूज़ करना, जैसे सर ने बताया हमें कभी भी बैक ऑफ नहीं करना। आज नहीं तो कल कई बार ऐसा होता है, हमारे क्या इसके अंदर 3 ग्रुप्स रहते हैं फाइनल के अंदर। एक ग्रुप क्लियर होता है, दूसरा क्लियर होता है। अब साल में 2 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, 6-6 महीने के हिसाब से एग्जाम्स होते हैं। अभी कोविड के अंदर तो सब अस्त व्यस्त है, लेकिन हमारी एग्जाम्स की डेट भी फिक्स है, हमारे रिजल्ट की डेट भी फिक्स है। हमारे साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून में और दिसंबर में, रिजल्ट्स की डेट भी फिक्स है। तो अगर बच्चा एग्जाम देता है, मान लो क्लियर नहीं हुआ जून में, तो यू कैन अप्लाई इन दिसंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टाइम का वेस्ट हुआ, 6 मंथ्स आगे पीछे चलता रहता है, लाइफ कहीं सिक्योर ही है आपकी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में M.Com वगैरह कोर्सेज हैं, लॉ के कोर्सेज हैं। तो मतलब अगर आप एकेडमिकली आपका प्रोफेशनली कोर्स नहीं हो रहा है, मान लीजिए CS कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अगर CS इंटरमीडिएट लेवल पे भी आए तो वो भी एक डिग्री है और वो भी इंटरनेशनली भी उसकी मान्यता भी है। अब ये है कि एक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि आपके पास में जो चीज़ें हैं अभी हाथ में हैं, उनसे आप कहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, कहाँ आप काम ले और सकते हैं। एकेडमिक्स तो चलता ही रहता है, B.Com M.Com, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। यस एक बिल्कुल। क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा मैम, जैसे आपने कहा कि B.Com के साथ आपने CS की, तो B.Com एक डिग्री कोर्स हो जाता है और CS एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते कि प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होता है और उनके वैल्यूज़ क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे समझते हैं कि जैसे आज मुझे CS का कोर्स करना है, चलो मैं बिल्कुल लेमन से स्टार्ट करते हैं ना। एक सर्टिफाइड प्रोग्राम क्या होता है, कुछ घंटे आपको कंप्लीट करना पड़ता है, सम आवर्स यू हैव टू कंप्लीट, भाई 64 आवर्स 60 आवर्स ऐसे करके। तो ये हो गया सर्टिफाइड प्रोग्राम, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इतने घंटे कंप्लीट कर लिए, आप ठीक है, आपको एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ सर्टिफाइड प्रोग्राम, बिल्कुल बेसिक। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में डिप्लोमा। अब डिप्लोमा और डिग्री में क्या फ़र्क है? देखो, डिग्री के अंदर होता है कि पूरी हमने मेहनत कर ली, पूरे अच्छे से पढ़ाई कर ली, जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है वो हमको B.Com का एक डिग्री कोर्स देता है कि भाई आपने 3 साल हमारे यहाँ पे हाजिरी भरी है और आप हमारे पास में B.Com पूरी करी है, तो हम आपको पूरा एक डिग्री दे देते हैं। अब डिप्लोमा क्या होता है, वही 3 साल का काम आपने 1.5 साल में किया या 1 साल में किया, तो दैट इज़ अ डिप्लोमा। मतलब क्रैश कोर्स में शॉर्ट टर्म में उसको एकदम श्रंक करके आपको हमने एक डिप्लोमा दे दिया कि आपका टाइम भी लिमिटेड है और आपने वो नॉलेज गेन कर ली ऊपरी तौर से, तो वो होता है एक डिप्लोमा कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स आपको आपकी लाइफ देता है। आप जिस दिन से CS या कोई ऐसी डिग्री हासिल करते हो, आपके नाम के आगे एक प्रीफिक्स ऐड होता है। नो आई कैन से आई एम CS पूजा चंदानी सर, CS धीरेन्द्र शर्मा। तो इस तरीके से एक तो आपको खुद को वो वैल्यू मिलती है, इसके बाद में आप खुद अपने नाम से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी खुद की। जैसे मेरा कंपनी का नाम पूजा चंदानी एंड एसोसिएट्स, सर का धीरेन्द्र शर्मा एंड एसोसिएट्स। तो इस तरीके से हम अपने नाम से अपना प्रोफेशन चला सकते हैं, ठीक है। एक तो ये अपनी इंडिविजुअलिटी हो जाती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाते हैं जो अपना खुद का लाइवलीहुड खुद भी अर्न कर लेते हैं। और एक तरीके से मैं ये बोलूँगी कि एक नॉर्मल ब्रेड है डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद में एक सेकी हुई ब्रेड है, एक डिग्री कोर्सेज। अब सेकी हुई ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाएं या आप जैम लगाएं और उसको बोले कि तुम मार्केट में सिक्योर करो अपने आप को, एंड मतलब देखो, अनटिल एंड अनलेस मनी इज़ ऑलवेज अ मोटिवेशन, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी वर्क के पीछे ही मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, बट अगर कोई बच्चा इतने साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, तो डेफिनेटली ही वांट्स टू रिटर्न ऑन स्टडीज़, ऑन द नाइट्स ही स्पेंड ऑन स्टडिंग। तो ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये एक्चुअली में आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आपने इतना मेहनत की, क्योंकि वो आपके हाथ में जब वो आपकी मेहनत आती है तो आपको लगता है यार डेफिनेटली मैंने ये कोर्स किया, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में हमारे इस स्कूल ने ऐसे लोगों को बुलाया जिन्होंने हमें गाइड किया और उस गाइडिंग लाइट पे हम चले। तो ठीक है, 3 साल हमने मेहनत की, 4 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद में हमारी लाइफ सिक्योर,
बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकती। आपके सर ही, प्रिंसिपल सर तो हमेशा हमारे सेशंस में आते हैं, तो सर खुद ही डिस्क्राइब करते हैं कि रिलायंस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है, उसके हस्बैंड ही सीए हैं, लेकिन शी अर्न्स मोर देन हर हस्बैंड एंड वो लंबी गाड़ी में आती है। तो काफ़ी सारे पर्क्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूजा मैम आपने बताया, और हमारे बच्चे जो हैं ज़रूर वो जो 3-4 साल की हार्डवर्क है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। बिकॉज जब इतने सारे पर्क्स मिलते हैं, इतने सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, एंड इट इज़ लाइक कि अपने नाम के साथ जब चीज़ जुड़ती है तो उसका चार्म ही अलग हो जाता एक है। सोशल स्टेटस अलग बन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, हमारी एक स्टूडेंट पूछ रही है आपसे। Morning everyone, myself Rashita Mathur and I am a student of Commerce Computer Science. So my question is that can I give exams of banking after class 12th? And the another question is which is the best institution for banking in Jodhpur? Thank you, have a nice day. अभी IBBI सारे बैंकों के जो रिक्रूटमेंट होते जी। हैं वो IBBI के थ्रू होते हैं, और जो बैंकर में जो क्लरिकल पोस्ट होती है उसमें 12th पास की रिक्वायरमेंट होती है, और PO एंड अदर मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन एंड हायर प्रोफेशनल डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप 12th के बाद में जो क्लरिकल की जो पोस्ट आती है उसमें आप IBBI के थ्रू आप एग्ज़ाम हर बार, मेरे साथ हर 3 महीने के अंदर IBBI के एग्ज़ाम होते हैं, और जैसे जैसे रिक्रूटमेंट आता है आप वो तैयारी कर सकते हो। जोधपुर में बहुत से प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ये Banking 12th preparation, हाँ जी। IBBI की कोचिंग आपको अच्छे से करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप BBA LLB कीजिए, चाहे BCom LLB कीजिए, साथ में CA CMA तीनों कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। तो सर जो एक क्योंकि बच्चा CA CS और CMA ये तीनों है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। हाँ, you need जी, not जी, to जी, regular क्लास ज्वाइन रेगुलर क्लासेस टू CA इंस्टीट्यूट या Okay. CS इंस्टीट्यूट। आपको डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, Attendance is not अटेंडेंस नॉट रिक्वायर्ड, बट एग्जाम Yeah, रिक्वायर्ड। of course. एग्जाम के लिए आपको हर बार तैयारी करनी तैयारी चाहिए। yes, करनी yes. पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में जो क्वालिफिकेशन है वो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ दूसरे कोर्सेज में मैंने देखा है कि कहीं बाहर अगर बच्चा जाता है तो उसे ब्रिज कोर्स सॉर्ट ऑफ कुछ कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, कुछ कनेक्शन ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो क्या ये कॉमर्स के लिए भी एप्लीकेबल है? ये भी मैम कॉमर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कंट्रीज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ICSI का मोर देन 12 कंट्री के साथ में टाई अप हो रखा है, हाँ जी। जहाँ पे CS को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ के कंपनी सेक्रेटरी के ओके, इक्वलेंट। हाँ। तो वहाँ पे आपको वो जरूरत क्रैश कोर्स नहीं है। रिक्वायर्ड नहीं है। अदर दिन आप उस प्रोफेशन के अलावा जाते हो तो वहाँ के जो नॉर्म्स है, वहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ का क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा। और डेफिनेटली जो मैम ने भी बात करी, देर आर सम कंट्रीज जहाँ पे कुछ हमें 1-2 पेपर्स, ज़्यादा नहीं होता, 2-3 पेपर्स हमें देने पड़ते हैं, वो एड ऑन होते हैं, तो वो भी कोई बड़ी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए द लॉ ऑफ आर कंट्री, लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं ना, जो लॉ ऑफ लैंड लेक्स 4 ये टर्म है कि भाई लॉ ऑफ लैंड जो जोधपुर इंडिया का है, दैट विल नॉट बी द सेम इन UK, US, चाइना, जापान, so every country have their own modus operandi, so we need to adhere to every country's working style। तो उसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। अब क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हमें बाहर जाना पड़ेगा, बट मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करूँगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको हम वापस रीट्रेड भी कर सकते हैं विद द क्वेश्चन ओवरहेड जो आपने बताया था, डिप्लोमा, डिग्री, और ये अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबको मान्यता दी गई है, डिप्लोमा कोर्स को भी, डिग्री कोर्स को भी, सबको, प्रोफेशनल कोर्स को तो और वैल्यू दी गई है। अब जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी है वो ऐसी है कि बाहर जाके हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो 11th-12th में एक बच्चा कॉमर्स में, हम जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल तक वो वहाँ पे पढ़ा। समझ सकती हूँ कि आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आजकल देश के लिए तो हम एक एसेट बनते ही हैं, लेकिन हमें चलता है कि भाई विदेश में भी जाके अपनी सेवाएं दें तो बहुत अच्छा है। Exactly. तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनते हो। सो ये तो जो क्वेश्चन था, इसमें सर एक क्वेश्चन और जो है बच्चों के लिए फ्रेम हो जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, चाहे नेशन या इंटरनेशनल लेवल पे। सर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? कंपनी सेक्रेटरी मैम, जो भी कंपनी जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है जी, लेकिन अभी जो रिसेंट कंपनी एक्ट अमेंडमेंट गया उसमें 10 करोड़ तक की लिमिट ओके, गई है पेडअप शेयर कैपिटल जो है। अगर किसी कंपनी की पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है हाँ जी, उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है ओके, एज पर एक्ट। अदरवाइज पर डे पेनल्टी एप्लीकेबल उस कंपनी के ऊपर और जो KMP है की मैनेजर पर्सन उनके ऊपर भी, कि आपने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट क्यों नहीं किया गया है। तो
तो आप जॉब की तो वो टेंशन छोड़िए कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, हाँ। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, मोर देन 33,000 कंपनियों के ज़्यादा तो आज लिस्टेड कंपनीज है, Right, sir. और उसके अलावा बहुत सी कंपनियां ऐसी है मोर देन आई थिंक 5 लाख के अबव है जो 10 करोड़ के ऊपर की पेड कैपिटल होल्ड करती है। हाँ जी, उसमें कंपनी सेक्रेटरी रिक्वायर्ड है ही है। अब वो नहीं कर रही है तो उसके ऊपर पैनल प्रोविजन एप्लीकेबल है। ओके, जिस दिन गवर्नमेंट का, जैसे अभी बीच में मोदी सरकार ने जो स्ट्राइक ऑफ का जो हाँ हाँ बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का किया था, जिस दिन उनका डंडा चला उस दिन कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी आ जाएगा। उस दिन जॉब आपके सामने, आप एक बंदे हो, आपके सामने 10 अपॉर्चुनिटी है कि आपको किस कंपनी को ज्वाइन करना है। सर बस वही है, वापस से मैं वही बात कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं है Awareness लोगों को नहीं पता है कि इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनकी क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, बट बस वही है कि जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ इसके साथ में आपको एक और जोड़ूंगा कि जी। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आप लोकल ब्रांड नहीं हो, राइट, क्योंकि आपने अगर नेशनल ब्रांड लिया है तो आपको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना होगा और आप कर सकते हो। आप ये मत देखो कि मैं जोधपुर का हूँ तो जोधपुर ही मेरा लिमिटेड एरिया, नहीं। ये आप- रिमोट एक्सेसिबिलिटी कल्चर से निकलना है। आपको Right. जोधपुर से बाहर Mobility निकलना रखना, पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। जितना आप मूव करोगे आप उतने आगे बढ़ोगे। क्योंकि डेफिनेटली जैसे सर बता रहे हैं जो ये हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है वो ज़्यादा देखा जाता है मेट्रोज में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। डेफिनेटली जोधपुर के अंदर में भी है, क्योंकि हम यहाँ पर इतने सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हम अपना खुद का भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। एक तो सर ने बताया कि बाय द वर्च्यू ऑफ जॉब, ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन, कोई सीएमए का प्रोफेशन, कोई लॉ का प्रोफेशन अपने एक्ट में नहीं लिखता कि भाई इसको नौकरी देनी ही देनी है। हमारा एक सीएस प्रोफेशन है जिसने एक्ट के अंदर डाल दिया कि भाई कोई कंपनी की अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है तो उसको सीएस रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखा तो पर डे की पेनल्टी है। फॉर एग्जाम्पल पर डे की पेनल्टी 1000 रुपये। तो अगर एक महीने की 30,000 नहीं रखने की है तो रखने की कितनी होगी? है ना? तो पहला तो अपने पास में ये आ जाता है कि हमें जॉब से ही मिल गया। दूसरी सिक्योरिटी, जैसे मैं और सर कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या, देयर आर वर्क्स विच आर रिजर्व फॉर प्रैक्टिस, विच आर रिजर्व फॉर जॉब। जॉब के अंदर क्या होगा, कंपनी की एजीएम कैसे करनी है, मिनट्स कैसे प्रिपेयर करने, शेयर होल्डर्स के काम, डायरेक्टर्स के काम, सब कुछ एडवाइजरी वगैरह। प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, हम इतनी सारी कंपनीज को हम खुद इनकॉर्पोरेट करते हैं, उन कंपनी के हम सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं, हमारा काम अलग होता है। तो इतना डाइवर्स काम है कि प्रैक्टिस वाला भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है, तभी भी काम खत्म नहीं हो रहा। और हर महीने हमें लगता है किसी ना किसी की लास्ट डेट है कंप्लायंस की। तो बड़ा फास्ट चलता है। अच्छा, इसके साथ मैम मैं ऐड ऑन करूँगी। हाँ जी, जोधपुर में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 5 सालों से, सर काफ़ी समय से कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा समय से। तो हम लोग जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास में इंडिविजुअल की भी आता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंपनी का ही काम करते हैं, हमें एक पूरा ही होराइजन, कहते हैं ना, होलिस्टिक अप्रोच से चलना पड़ता है। तो हमें एक इंडिविजुअल का भी काम करना पड़ता है, हम पार्टनरशिप का भी काम कर सकते हैं, हम कंपनी का भी काम कर सकते हैं। 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं हम। 11th-12th के कॉमर्स के बच्चे समझ पाएंगे इस बात को कि हम एक जीएसटी भी बन जाते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर भी बन जाते हैं। वैसे हम बनते भी हैं, सीएस के अंदर हमारे को जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी ओहदा मिला है। उसके बाद में हम इनकम टैक्स रिटर्न्स भी भर सकते हैं, उसके बाद में हम कंपनी का भी काम कर सकते हैं। तो एक पूरा एक प्रोफेशनल क्रिएट करके आपको देता है, और ये डिग्री के पीछे आप सारे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है कि सिर्फ कंपनी का ही काम कर। प्रैक्टिस आपके पास एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है। हाँ। राइट, अब आप उसको कौन सा सेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ मुझे कौन सा सिर्फ select एक करना है, बास्केट वो सेल आता करनी है है, ना, वो हाथी आपके को ऊपर टच डिपेंड करता है कि पूछ क्या है, ये आईडी क्या है, ये क्या है, ये तो अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। तो उसी तरीके से सीएस के अंदर में आपको बहुत सारा एक होराइजन मिलेगा। तो बच्चे के लिए कॉमर्स के अंदर तो वैसे ही होराइजन है, सीएस के अंदर तो और ज़्यादा होराइजन। और सीएस क्या होता है ना, अब मैं एक छोटी सी चीज़ एड ऑन करना चाहूँगी कि रामायण अभी हमने काफ़ी देखा लॉकडाउन के अंदर। तो रामायण में आपने देखा होगा कि वो जो सेक्रेटरी होते हैं उनके श्री, जो उनका कितनी बार नाम आया है। तो रामायण के अंदर भी मतलब मोर देन 50 टाइम्स एक सेक्रेटरी का नाम आया है। तो सेक्रेटरी का रोल तो वैसे ही बहुत बड़ा है, वो उनके जो एक साथ में रहते थे हमेशा। तो अब हमारे मोदी जी भी जब बने, ये मैं बता रही हूँ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वे जाके कि भाई मोदी जी जब बने प्राइम मिनिस्टर, जब फर्स्ट टाइम बने थे, इससे पहले सबसे पहली मीटिंग उन्होंने की थी अपने सेक्रेटरियल स्टाफ के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी होल्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ अ कंपनी। आपको कैसे पता चलेगा वर्किंग? ट्रू, द पर्सन हु इज कमिंग इनटू अ न्यू ऑफिस, हाउ विल ही कम टू नो अबाउट ऑल द सीक्रेट्स? वो सेक्रेटरी से ही पता चलता है, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग। तो हमारा रोल बहुत बड़ा है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रोल है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है, और बहुत इतनी अच्छी पोजीशन मिलती है। जो सर ने अभी एक वर्ड यूज़ किया, छोटा सा वर्ड है लेकिन उसके मायने इतने बड़े हैं ना, आप सोच नहीं सकते। KMP, की मैनेजरियल पर्सन।
अब आप सोचो लाखों करोड़ों की कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके अंदर में एक KMP रखना पड़ेगा। अब वो KMP कौन होगा? एक CS, मतलब अनिल अंबानी के साथ में आज 10 साल की प्रैक्टिस किया हुआ CS बैठा है, उसको एडवाइस दे रहा है। कोई ग्रुप नहीं, कोई आगे पीछे रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई की, मेहनत की, आगे बढ़ गए। जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है वो KMP में इंक्लूडेड है। बिल्कुल सर। तो मतलब आप देखिए कि इतना ज़्यादा हमें एक्ट से हमें ओहदा मिल रहा है। तो ये ऐसा प्रोफेशन है जिसने एक तो जॉब सिक्योरिटी भी एक्ट में दे दी, कोई नहीं देता है ना, कोई जुडिशरी नहीं देती, कोई आपको बैंक की नहीं देती, कोई क्लेरिकल जॉब, कोई लॉ की जॉब नहीं देती, ये CS देता है। और प्रैक्टिस का आपका खुद का इतना बड़ा होराइजन है, आप हर तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। और मतलब इतना बड़ा, जैसे अभी सर ने एक एग्जांपल दिया कि एक बास्केट है और उसमें इतनी सारी चॉइसेस हैं और हाँ। ये आपको चूज करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप लेना चाहेंगे। हाँ, जैसे आप जोधपुर शहर में रह रहे हैं तो जोधपुर शहर में इस तरीके का काम आएगा, बाहर मेट्रोज में है तो उस तरीके का, तो वर्किंग है तो आप हर जगह अडेप्टिव हो जाते हैं। एक अक्सर क्वेश्चन बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि कॉमर्स एंड टीचर, तो एक कॉमर्स स्टूडेंट टीचिंग लाइन में कैसे एंटर हो सकता है और प्राइवेट फील्ड एंड गवर्नमेंट फील्ड में उनके क्या स्कोप है? ये अक्सर बच्चों के माइंड में ये भी एक क्वेश्चन देखा गया है। सर टीचिंग के बारे में मैं आपको जितना बता पाऊँगा उसके अकॉर्डिंग ये है कि 2005 से पहले आई थिंक कॉमर्स के अंदर B.Ed अलाउ नहीं थी राजस्थान के अंदर। देर आफ्टर उसके बाद में जब ये डिमांड उठी कि कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाएगा कौन, क्योंकि कब कॉमर्स में B.Ed ही अवेलेबल नहीं है तो टीचर आएंगे कहाँ से? उसके बाद में कॉमर्स को मान्यता दी गई कॉमर्स B.Ed की। फिर कॉमर्स B.Ed आगे इसको प्रोसेस में आया MPhil PhD के रिगार्डिंग। आपको जानकर और भी खुशी होगी कि जो CS कोर्स आप जो करते हो, जो फाइनल मेंबर बनता है, वो जस्ट लाइक आपकी एक PG डिग्री है। अच्छा, उसको आप डायरेक्ट आप PhD के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इन लीगल मैटर के अंदर। कंपनीज एक्ट, लेबर एक्ट, जो भी आप लॉ पढ़ते हो उसके अंदर आप PhD के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो PG मास्टर्स मिल गया हमें, उसके बाद में आप एलिजिबल हैं PhD आपको के ये नहीं है कि आपको M.Com करनी पड़ेगी। ओके, आपने CS की हुई है, CA की हुई है, आप डायरेक्ट PG के लिए अप्लाई कीजिए। जो प्री PhD एग्जाम होते हाँ जी, हैं हाँ। उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। और देन आप उसके बाद जो आपका टीचर नेट का है एग्जाम है, जी, अब वो क्लियर कीजिए, टीचिंग लाइन में रिसर्च फील्ड में भी जाएगा। रिसर्च फील्ड में आएगा। धीरेन्द्र सर, जैसा कि आपने कहा कि पहले B.Ed नहीं अवेलेबल थी, उसके बाद आपने रिसर्च की भी बात की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप CS नहीं होते तो आप ज़रूर टीचिंग फील्ड के लिए होते। सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए आप हमारे साथ। 2005 में मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था, जी, तो CS में आने का एक रीजन ये भी था कि मेरे पास कॉमर्स B.Ed का ऑप्शन नहीं था। ओके। कॉमर्स में B.Ed होती नहीं थी। मैंने जहाँ तक मैंने पता किया बहुत सी कॉलेज जी, में नहीं सीनियर से कंसल्ट किया, यार कॉमर्स में B.Ed नहीं होती, तो मैंने कहा चलो कॉमर्स में B.Ed नहीं होती कोई बात नहीं, CS कर दे, क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल प्रोसेस है पूरा। जी, तो इस सर चक्कर में मतलब CS का अगर भी उस टाइम part B.Ed रहा हो है। रहा होता तो आज हमें Most एक probably एजुकेशन में एक हमें बहुत अच्छी पर्सनालिटी मिलती है और Most probably मैं CS CS हम में मिस हो जाते। और अभी फिलहाल वो प्रोफेशन में। जी जी, यहीं पे एक बच्चे ने भी हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। Good morning, my name is Karishma Gurbani and I am student of commerce. My question is, what is the process of becoming cost accountant, and also what are the career opportunities for cost accountant in private and public sector? Thank you. सेम अपॉर्चुनिटी है। आप कॉस्ट अकाउंटेंट, आप CA, CS और CMA को आप अलग अलग मत देखिए। जो अपॉर्चुनिटी आपको CA में अवेलेबल है, सेम टू सेम आपको CA में भी अवेलेबल है। CMA का एक वाइड एरिया होता है आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करना। हर प्रोडक्ट की एक कॉस्ट होती है। आज जैसे मैं सपोज करो हमारे सामने जैसे गिलास है, इस गिलास की कॉस्टिंग आई होगी, इसको एक्चुअल में कितना प्राइस में सेल में करूँ ताकि मुझे प्रॉफिट हो, इसकी कॉस्टिंग निकालने का काम CA में का है। और एक्चुअल कॉस्टिंग जो निकालेगा वो CA में ही कर सकता है। इसके लिए आप जॉब में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट जिसको कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट जिसको कहते हैं, और सारा जो रहता है लेबर का वर्किंग जो भी रहता और है, इवन आपको overhead cost। GST, इनकम टैक्स, इसमें भी आपको फुल अपॉर्चुनिटी है CMA में भी। ओके सर, एक और बच्चे की क्वेरी है, हम पहले उसको भी ले लेते हैं, फिर आपसे सिलसिला जारी रहेगा। Good morning, my name is Nimitan. I am from class 12B. As my core career interest is in legal sector, I want to ask what are the core opportunities that exist within the ambit of legal and commerce. If I pursue the law of as a career, what are the benefits I can get having commerce as my main subject? देखिए लीगल के अंदर में तो वैसे भी मतलब जब व्हेन आई स्टार्टेड तो एट द वेरी इंसेप्शन आई टोल्ड कि लॉ जो है
मतलब हम वी आर डिफरेंट फ्रॉम लेमैन, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लेमैन एंड अ लॉमैन। तो लॉमैन हम कंपनी सेक्रेटरीज लॉ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि हम इतना वाइडर नॉलेज हो जाता है कंपनीज एक्ट के ऊपर। अब क्या है, जो CS और LLB का एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले सजेस्ट किया, जब हम LLB करते हैं तो हम अराउंड 50, राउंड फिगर ले रही हूँ, वैसे तो 48 होते हैं, अराउंड 50 लॉज पढ़ते हैं, 50 कानून पढ़ते हैं अगर हम LLB करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, टोटल बता रही हूँ। लेकिन जब हम CS करते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, हम मोर देन 128 लॉज पढ़ लेते हैं। 128 लॉज बहुत ही आराम से, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छे से पढ़ लेते। तो हमारा जो एक्ट को पढ़ने का तरीका है, भाई अब मैं आपके सामने एक एक्ट रख दूं, जैसे हमारे सामने हर साल एक एक्ट आता है, वो है फाइनेंस बजट। जो बजट आता है दैट इज़ एन एक्ट, फाइनेंस एक्ट आता है। तो वो अगर हम नॉर्मल जैसा आता है वो गैजेट वाली लैंग्वेज, तो हमें नहीं समझ में आएगी। हम तो सिर्फ वो व्हाट्सएप पे आजकल मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर में दूसरे दिन आता है कि ये हुआ, ये दर यहाँ से चेंज हुई, ये टैक्स रेट लगेगा, हम उसको समझ पाते हैं क्योंकि वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। लेकिन अगर लीगल लैंग्वेज को समझना है तो आप LLB का अगर सोचते हो तो उससे पहले भी आप CS का सोचो, क्योंकि LLB तो वैसे भी आपकी ग्रेजुएशन के बाद होगी, ये ग्रेजुएशन के साथ साइमल्टेनियसली आप CS कर सकते हो। और जो मैंने आपको वेरिएशन बताया लॉ के अंदर में, तो लीगल कंपोनेंट हमारे फील्ड में ज़्यादा है। लॉ के सब्जेक्ट्स और लॉ की पूरी थॉरो नॉलेज, जो सर बता रहे, लेबर लॉ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंपनी लॉ के अंदर में बहुत सारे लॉज इतनी तरीके के हैं। हम ब्रोशर भी एक बार आपको शो कर देंगे, तो ब्रोशर के अंदर में भी हर सब्जेक्ट के अंदर में भी आप समझेंगे कि एक एक सब्जेक्ट में 50-50 लॉज, इतना ज़्यादा है लॉ का पार्ट। तो लीगल सिस्टम तो यहाँ पे आप वैसे ही कैच कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। CS और लॉ का तो वैसे भी बहुत अच्छा स्कोप है। और एक कंपनी जो होती है, जैसे मान लो कोई भी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी, वो कभी भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने में बिलीव नहीं करेगी। वो सोचेगी कि अगर एक मैं एडवोकेट LLB पास आउट को भी रखूँ, एक CS को भी रखूँ, अगर मुझे इनका कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर अ पर्सन। एंड अगेन, क्योंकि अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिलीज़ करता है, एक हम लोग जो रिलीज़ करते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव कि भाई हम एक ऐसा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं जो कि हर तरीके से ओपन है, किसी के साथ भी कंबाइन होने को। तो हम LLB के साथ में CS कर सकते हैं। लीगल के अंदर आप जाइए, ये जो भी बच्चे का सवाल है, आप CS और LLB ऑप्ट कीजिए। देयर इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ को समझने। मतलब यहाँ पे भी अपन यही कहेंगे ना कि यहाँ पे भी एक डिसीजन है कि आप कॉम्बिनेशन जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। थोड़ा सा एड करना चाहूँगा कि Sure, sir. जैसा कि अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो CNBC और जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, वो देखते होंगे हर रोज़ न्यूज आ रही है कि आज इस कंपनी में फ्रॉड हुआ, आज इस कंपनी में फ्रॉड हुआ, चाहे कोई भी कंपनी हो। जैसे अभी रिसेंटली विजय माल्या का जो किंगफिशर का हुआ था, नीरव मोदी का, वीडियोकॉन का, ICICI बैंक, और वो सबसे पहले वाला सबको याद है, सत्यम स्कैम वाला। सत्यम स्कैम। तो ये सारे स्कैम्स, अगर जो LLB होता है, LLB के अंदर आप पढ़ते हैं जुडिशरी, IPC, IBC, और CS के अंदर आप पढ़ते हो कॉर्पोरेट लॉज। तो हाउ टू अर्न मनी, जो विटामिन M अपनी बॉडी को मिलना चाहिए, अपनी पॉकेट को मिलना चाहिए, वो कॉर्पोरेट लॉ में बहुत ज़्यादा है। आप उस लॉ को अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये स्कैम आते आते रहेंगे। क्यों? जहाँ पे लूप हॉल हुआ वहाँ पे स्कैम हुआ। और इस लूप हॉल को रोकने के लिए आपकी अहमियत उतनी है जितना एक बिल्डिंग के अंदर वो पानी का लीकेज होता है ना, अगर वो टाइम पे नहीं रोका गया तो बिल्डिंग खराब कर देगा, उतना ही इम्पोर्टेंस है आपकी। ग्रेट सर, है ना, वैसे जो CS वाली बात रही थी, जैसे मैम ने रामायण का एग्जांपल दिया, मुझे लगता है ये तो हमारे बहुत पहले से ही, चाहे रामायण का लें या महाभारत का लें, तो दोनों में ही वहीं से जब ये परंपरा चलती आ रही है, तो इसे तो खैर इसमें इतनी क्रिएटिविटी है, इतना इसमें चीज़ें हैं कि कोई भी इस चीज़ के लिए जाना चाहेगा तो सर ये तो बहुत फ़ायदे का सौदा है। एक और क्वेश्चन है। Good morning. My name is Pragya Ranna. I study in class 11. Everyone told me that CA is very difficult. I have a query related to the CA foundation. I just want to ask that how to prepare for the CA foundation from class 12th. थैंक यू। बेसिकली CA फाउंडेशन हो, CMA हो, CS हो, इसका एक कंबाइंड ही आंसर देती हूँ। कॉमर्स के अंदर में सबसे ज़रूरी, और ये आप लोगों के लिए जानना तो और ज़रूरी हो जाता है, कि जो भी फाउंडेशन लेवल के एग्ज़ाम है, भले CPT है, भले CSET है या CMA का फाउंडेशन है, आपको 11th-12th का अच्छे से सिलेबस थॉरो होना चाहिए इसके लिए। तो बिकॉज देर इज़ नो नीड टू गो फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग।
ये मैं आपको खुले रूप से बता रही हूँ। अगर आपने 11th-12th में पढ़ाई अच्छे से की है, इफ़ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, इफ़ नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, CS के अंदर तो ज़रूरत नहीं है, बाकी प्रोफेशन में तो ज़रूरत है कॉमर्स की। हमारे प्रोफेशन में आप कोई वो रहा नहीं है कि कॉमर्स वाला ही कर सकता है। फाउंडेशन लेवल के लिए आप 11th-12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटेंट को थॉरो हो जाइए, क्योंकि जो बिज़नेस के पेपर्स आते हैं, इंग्लिश के पेपर्स आते हैं, लैंग्वेज के पेपर्स आते हैं, वो सारा आपका इंग्लिश में कवर हो जाता है। थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स वाला लैंग्वेज एक पेपर आता है हमारा CS के एंट्रेंस में, वो आपका उसमें कवर हो जाएगा। बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह इन्वॉल्व कर दिए हैं, वो आप सीख लेते हो। कुछ मॉड्यूल्स और पेपर्स मिलते हैं, उसमें से सीख लेते हो। और अगर आपने अच्छे से 11th-12th का अकाउंट्स और ये सारा अच्छे से पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। तो मतलब मेन यही है कि पहला डिसीजन आप एक ऐसा ले लें जिससे कि आपको आपकी राह चुनने में आसानी हो जाए, और उसके बाद में मूव ऑन दैट। मतलब एक ही चीज़ है, मैं अंत में ही कहूँगी, इसके बाद बस हमारा क्वेश्चन भी आपसे यही था हाँ बिल्कुल, कि व्हाट आर द स्पेशल सजेशंस फ्रॉम योर साइड। आप लोग दोनों अपने स्पेशल सजेशंस हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर पहले करें। आप बताएं। कॉमर्स स्टूडेंट को सजेशन एक ही है, जो पाथ आपने चूज किया है आप उससे पीछे मत हो, क्योंकि आपके साथ में आपके परिवार की बहुत सी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है। आप ये मत देखना मैं फेल हो गया हूँ, नहीं, फेल ज़िंदगी में कोई नहीं होता है। अनिल अंबानी भी फेल हुआ है, धीरूभाई अंबानी भी फेल हुआ था, रतन टाटा भी फेल हुआ है। फेल कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो सकती है, या कुछ सर्कमस्टांसेस आपके साथ ऐसे हो सकते हैं कि आपको अपना लाइन चेंज करनी पड़ सकती है, लेकिन आप फेल नहीं हो सकते। आपने जो डिसाइड किया है, जिस प्रोफेशन को आपने चूज किया है, दिमाग से, तन मन धन से आप उस प्रोफेशन की रेस्पेक्ट कीजिए, उस प्रोफेशन में आप मन लगा काम कीजिए, और प्रोफेशन आपको आपका सोशल स्टेटस देके जाएगा। आप कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो यू डेफिनेटली, जैसे सर ने बताया, तो यू ऑलवेज हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और बहुत ज़रूरी है इस तरीके से जो आप स्कूल लेवल पे करा रहे हो, मतलब हमारा तो पहला ही एक्सपीरियंस है सर, कि इस तरीके से कोविड के टाइम में भी आप अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सटेंडेड सर्विसेज दे रहे हो। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत एक तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करना, और इसको जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उनका बेनिफिट भी है, और हम भी इसको चाहेंगे और प्रमोट करना, क्योंकि हमारे भी ICSI के लेवल्स पे भी इसको हम जितना शेयर करेंगे और स्कूल्स भी समझेंगे ये जो है आपने पहल की है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि एक तो समय बहुत मूल्यवान चीज़ है, टाइम। यू फिनिश द टाइम, टाइम विल फिनिश यू, ये तो होना ही है एक दिन। अब बहुत ज़रूरी है आपको इस अर्ली स्टेज पे पता चल गया 10वीं के बच्चे को कि मेरे को क्या करना है, 10th के बच्चे को समझ में आ गया। आज हमारा सेशन देखने के बाद तो आ ही गया होगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, वही हमारी असली कमाई है, क्या वी हैव स्पेंड आवर टाइम हेयर। तो इतना तो हम चाहते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए कि मुझे CS करना है, मुझे लॉ करना है, मुझे इस फील्ड में अपना करियर होना है। अब उसने सोच लिया, अब उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो 11th-12th में इस तरीके से पढ़ेगा, इतनी मेहनत से पढ़ेगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये आपके मेंबर बनने के बाद भी आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है, कुछ कंपलसरी ट्रेनिंग्स का ध्यान देता है, बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ध्यान देता है हर चीज़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो यही चाहेंगे जितने ज़्यादा आपके LBN स्कूल से हर बार हमारे पास से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आते हैं, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बार भी CS के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, रजिस्ट्रेशन हों, और इस कोर्स को पढ़ के अच्छे से 3 साल मेहनत कर लो, एकदम स्वेट टॉयल एवरीथिंग, मेहनत इतनी करो कि आप फिर जब बनो तब आपको खुद को फील हो कि यार मेरी लाइफ सेट हो गई, और बिल्कुल लाइफ सेट होगी, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फील होगा कि ये इट इज़ वर्थ, मैंने किया है। डेफिनेटली हम लोग भी हैं इसी फील्ड में, हम खुद बता रहे हैं अपनी रास्ता, तो आपके साथ में यही है कि प्लीज़ वेलकम इनटू आवर फैमिली। तो आइए, बिल्कुल। तो इसमें यही है ना मैम कि हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। नो सब्सिट्यूट। आपको अगर बहुत आगे अपनी लाइफ में जाना है, कुछ बहुत बड़ा ड्रीम आपने अभी से देखना शुरू किया है, तो हार्डवर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्सिट्यूट। सो आज के इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स, क्वेरीज और उनके पेरेंट्स से रिलेटेड जो मिथ्स थे वो सॉल्व हो चुके होंगे, और अब उन्हें पता है कि हमें आगे क्या करना है। कन्फ्यूजन जैसी कोई भी कंडीशन अब नहीं है। आई होप ये प्रोग्राम आपके लिए एक करियर पाथ की तरह काम करेगा। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू मैम एंड सर कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और हमारे स्टूडेंट्स को दिया।